Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Hello everyone, welcome to Simplish Tutorials. Today we are going to cover a very important lesson from our class 10th CBSE syllabus. The name of this lesson is The Proposal. It is a play which is a farce. Farce is basically something that we call in Hindi, we call this tamasha in Hindi. So tamasha is, or we can call it farce in English. It is basically a play based on ridiculous and unlikely situations. When we say ridiculous or unlikely situations, we are trying to tell you that mostly these situations are not very likely to occur. मतलब ये इतनी जल्दी नहीं होता है. ये बहुत ही रिडिकुलस और बहुत ही बेकार की चीज़ों को, मतलब कोई सेंस नहीं होगा इन चीज़ों का, उसको हम लोग जब एक प्ले में यूज़ करते हैं तो हम उसे फार्स कहते हैं. हिंदी में जिसे हम तमाशा कहते हैं. इस प्ले में, इन दिस प्ले वी हैव three main characters. The two main characters are Chubukov and Lomov, who both are neighbors. They are also landowners. उन दोनों को अगर हम आज की हिंदी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उन्हें हम जमींदार कह सकते हैं. दोनों के पास लैंड्स हैं बहुत सारा, एंड आपस में उन दोनों के लैंड्स भी एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों के लैंड्स आसपास साथ साथ बने हुए हैं. Now Chubukov has a young daughter. As the name suggests, the proposal is का मतलब है there is supposed to be a proposal. So as the name suggests, Chubukov has a young daughter. Her name is Natalia. She's about 25 years old. Lomov is a young man of 35. Now I know it's kind of weird for everyone to say okay, 35 years is not young, but the time this play was written, 35 was considered young for a male, and females were considered that at the age of 25 they are supposed to get married. 25 की उम्र में सोचा जाता था कि लड़की की शादी नहीं हुई तो it's very late, but लड़का बेशक 35 years तक unmarried है, it doesn't matter, he will be still called a bachelor, a young man. So moving on, basically Lumov comes to Chubukov's house in order to propose to his daughter. Now, if we think about proposals of today, they are very different from the proposal that is being talked about in this chapter. इस chapter में जो proposal की बात हो रही है वो आज के proposals के हिसाब से बहुत अलग है. यहाँ पर इस proposal का मतलब एक relationship propose करना नहीं है, शादी के लिए propose करना है. It is a proposal for marriage, which is very different if you ask me. Because when we are supposed to propose for marriage, the most important thing is you need to seek permission from the parent or the parents, from the family. Only then you are, you know, allowed to propose for marriage basically. So यहाँ पर भी यही है कि चुबुकॉफ जो है वो यहाँ पे मैरिज प्रपोज करना चाहता है नटालिया को. प्रपोजल वैसे ही होता है जैसे घुटने पे बैठ के, वही एक इमेज हम सबके दिमाग में है, तो इट इज़ द सेम वे ही वॉन्ट्स टू प्रपोज टू नटालिया. बट बिफोर डूइंग दिस प्रपोजल ही रियली वॉन्ट्स के सीरियसली इंसान जो है आके पहले फैमिली से परमिशन लेता है. तो सिंस नटालिया के फादर का मेंशनड है इस प्ले में, तो ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, तो वो पहले वो चुबुकोव के पास आते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं कि मैं आपकी बेटी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ, आई नीड योर परमिशन, ओनली देन आई विल बी प्रपोजिंग टू देम. वरना इमेजिन इन दैट ओल्ड टाइम यू आर सीइंग दैट अर्जुन वेली वाला सीन हैपनिंग वेयर द गाय इज प्रपोजिंग टू द गर्ल एंड सडनली उसके भाई वगैरह डंडे लेके अर्जुन वेली गाना प्ले कर रहे हैं बैकग्राउंड में, ऐसा कुछ हो रहा है. सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. फॉर अ प्रॉपर मैरिज प्रपोजल यू नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम द फैमिली of the you know girl you want to marry. So the same thing is happening here. He's coming to Chubukov's house in order to propose to his daughter. But the story turns around when all three are because all three are very quarrelsome. तीनों बड़े, हिंदी में जैसे हम कहते हैं ना, आपस में झगड़ालू काइंड ऑफ लोग हैं ये हमारे तीनों कैरेक्टर्स. तो तीनों का नेचर ऐसा है कि बड़ा जल्दी झगड़े में पड़ जाते हैं. पहले जब वो आते ही बात करते हैं ईमान लुमोव जो है हमारे चुबकोव से कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है,
तो चुबुकॉफ बड़े खुश होते हैं. ही इज़ वेरी हैप्पी. ही सेज दैट ही इज़ वेरी हैप्पी विद दिस एंड ही इज़ रेडी कि वो, हाँ, वो परमिशन देने को तैयार है कि आप आके नटालिया को प्रपोज करें. नटालिया के बाहर आते ही दे स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट समथिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन दे टर्न दिस. बिफोर द प्रपोजल एकदम से एक फाइट आ जाती है. सो व्हाट हैपेंस इज, फर्स्ट दे एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट ओवर द ओनरशिप ऑफ अ पीस ऑफ लैंड. दोनों के बीच आसपास एक, मतलब दोनों का, सिंस आई टोल्ड यू दे आर लैंड ओनर्स, तो दोनों के पास एक ज़मीन के लेके एक झगड़ा चल रहा है बहुत सालों से जो सॉल्व नहीं हो रहा है. दे ही सेज नाउ लोमोव जो है इस झगड़े की वजह से ऑल टुगेदर भूल गया कि वो करने क्या आया था. जो हमारे साथ एक नॉर्मल सिचुएशन में होता है कि हम कई बार कहीं जाते हैं और हम एकदम से एक झगड़े में आ जाते हैं और बाहर निकल के हमें रियलाइज होता है कि हम करने तो कुछ और आए थे. सेम थिंग हैपन्स विद लोमोव. He forgets all about the proposal he has come to make because they start fighting about a piece of land. One of them is saying कि ये land मेरा है and the other one is saying कि I have the papers of this land and this land belongs to me. They shout and call each other's names. दोनों आपस में, मतलब तीनों, इनफैक्ट जब चुबुकॉफ को पता चलता है कि नटालिया एंड लोमोव इस बात पे लड़े तो चुबुकॉव उन्हें चुप कराने की जगह उल्टा खुद उस फाइट में बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं. इवन बिफोर द क्वारल इज सेटल्ड दे हैव अनदर क्वारल. बड़ी मुश्किल से वो क्वारल चुप, मतलब ख़त्म भी नहीं हुई होती कि एकदम से एक और क्वारल उनकी आपस में शुरू हो जाती है. और इस टाइम ये होती है अबाउट द ब्रीड ऑफ देयर डॉग्स, कि दोनों फैमिलीज ने जो पेट डॉग्स पाले हैं उनकी ब्रीड को लेके. एक कहता है कि मेरी ब्रीड का डॉग ज़्यादा अच्छा है और दूसरा बोलता है कि तुम्हारी ब्रीड का डॉग जो है वो तो और ज़्यादा बुरा है. मतलब जितना अच्छा तुम कह रही हो कि वो है वो उतना ही बुरा है. तो डॉग्स की ब्रीड को लेकर भी उनका झगड़ा हो जाता है. ईच क्लेम्स हिज डॉग इज ऑफ सुपीरियर ब्रीड. लुमोव इज अ नर्वस टाइप ऑफ पर्सन. अब लुमोव जो है वो इस समय तक ना, मतलब थोड़ा सा परेशान हो चुका है, नर्वस है वो बहुत ज़्यादा. एक तो वैसी प्रपोजल के बारे में सोचने आता है, लेकिन यहाँ पे आते ही उसके झगड़े हो जाते हैं. दो अलग बातों को लेके प्रपोजल हो ही नहीं पा रहा है. वो बहुत नर्वस हो जाता है. एंड वाइल फाइटिंग ऑल ऑफ अ सडन, वाइल क्वारलिंग विद नटालिया एंड हर फादर, ही फेंट्स. उसे एकदम से चक्कर आ जाता है. वो सब लोग आसपास दोनों डर जाते हैं. नटालिया बिगिंस टू क्राई. एकदम से नटालिया रोने लगती है बिकॉज पहली फाइट के बाद ही उसके फादर उसे बता देते हैं, चोबुकॉफ उसे बता देते हैं कि ये तुम्हें एक्चुअली प्रपोज करने आया था मैरिज के लिए. तो दूसरी बार जब वो आता है, इनकी फाइट जब शुरू होती है, तब वो फिर भूल जाते हैं कि वो किस लिए आया था और आपस में फाइट करते हैं. अब एकदम से यहाँ पे जैसे ही वो देखते हैं कि लोमोव फेंट हो गया है, बेहोश हो गया है, दे ऑल गेट वरीड. नटालिया बिगिंस टू क्राई दैट नाउ देयर वॉज नो बडी टू प्रपोज टू. मतलब दैट पर्सन इज नॉट एट ऑल कंसर्न कि वेदर लुमोव इज फाइन और नॉट. उसको बस इस बात का दुख है कि मुझे अब कौन प्रपोज करेगा, क्योंकि जो मुझे प्रपोज करने आया था वो भी बेहोश हो गया और हो सकता है वो मर गया हो. एज सुन एज लुमोव कम्स टू हिमसेल्फ, जब धीरे धीरे लुमोव को होश आता है. अब चुबुकॉफ को ये बात समझ आ चुकी है कि मेरी बेटी जो है वो तो बड़ी झगड़ालू है, मैं खुद बड़ा झगड़ालू. अब अगर सामने से एक रिश्ता आ रहा है तो हमें उसे मना नहीं करना चाहिए. तो इवन बिफोर लुमोव प्लान्स टू प्रपोज, चुबुकॉफ पुट्स हिज डॉटर्स हैंड इनटू लुमोव्स हैंड. चुबुकॉफ अपनी बेटी का हाथ उठाते हैं, लुमोव के हाथ में रखते हैं. बिना किसी प्रपोजल के, पैर मतलब घुटने पे बिना बैठे शादी के लिए प्रपोज करे बगैर ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है. दस द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड विदाउट बीइंग मेड. के प्रपोजल हुआ भी नहीं लेकिन वो प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो गया. सो दिस इज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर प्ले. Moving on, let's just see the names of these characters. We are only going to use a single name. They all have first name, middle name and their surnames, but we are just going to use them in a very specified manner. For example, the first name of our character is Stepanovich Chobukov. So we are just going to use the word Chobukov. For Natalia Stepanova, we are just going to use Natalia. And for Ivan Vasilevich Lumov, we are just going to use the word Lumov. So let's begin ahead. Let's start with the main points of this play.
The first point says that Lomov and Chubukov are neighbors. We just established that. हमने ये चीज़ अभी establish करी है हमारी introduction में कि Lomov and Chubukov दोनों पड़ोसी हैं आपस में. One day, Lomov comes to Chubukov's house to propose to his daughter Natalia. Lomov जो है वो Chubukov के घर आए हैं प्रपोज करने उनकी डॉटर नटालिया को. एज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. चुबुकॉफ की बेटी की एज है 25 वाइल लुमोव इज 35 years old. So there is a 10 years gap. Chubukov feels very happy about the proposal. He goes in and sends Natalia to Lomov. Chubukov बहुत ज़्यादा खुश है. Why? Because उसकी बेटी उस एरा के हिसाब से 25 years की एज में अनमैरिड होना वॉज अ वेरी बिग थिंग. और ये एक बहुत बड़ा बोझ होता था फादर्स की उसकी फैमिली पे कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है. ही गेट्स वेरी हैप्पी कि उसकी बेटी को फाइनली कोई शादी के लिए प्रपोज करने खुद आया. उसका काम बच गया, उसे जाके लड़का नहीं ढूंढना पड़ेगा. इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट. ही गोज इन एंड सेंड्स नटालिया टू लुमोव. वो नटालिया को लुमोव के पास भेजता है. वो चाहता है कि उसकी बेटी सरप्राइज हो, तो इसलिए वो उसे ये नहीं बताता कि लुमोव उसे प्रपोज करने आया है. एंड हमारे जो लुमोव का कैरेक्टर है वो भी बड़ा वेल ड्रेस होके जाता है क्योंकि उसको होता है कि ही वॉन्ट्स टू लुक परफेक्ट वाइल प्रपोजिंग. सो ही गेट्स रेडी इन अ वेरी प्रॉपर सूट एंड एवरीथिंग. इतना रेडी कि एट वंस जब चुबुकॉव लुमोव को देखते हैं ही थिंक्स कि मे बी ये मुझसे पैसे उधार मांगने आ रहा है. दैट इज़ वाई वो इतना तैयार होके आ रहा है. बट व्हेन ही टेल्स हर के प्रपोज करने आया तो ही गेट्स वेरी वेरी हैप्पी. Lumov feels very nervous and then he starts talking irrelevantly. अब नटालिया की एंट्री होती है, लेकिन वही बात है जो हर किसी इंसान के साथ होता है, नर्वसनेस. जब ऐसा कुछ कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम हम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत नर्वसनेस होती है. सेम चीज़ हमारे लुमोव के कैरेक्टर के साथ है. ही इज़ फीलिंग वेरी नर्वस एंड राइट नाउ ही स्टार्ट्स टॉकिंग इरेलीवेंटली. मतलब ये वही है जो पिक्चरों में हम लोग सीन देखते हैं कि लड़का लड़की को प्रपोज करने के लिए सीन बन रहा है और वो उसमें मौसम डिस्कस कर रहे हैं, आपस में बातें डिस्कस कर रहे हैं. वही सब कुछ यहाँ पे हो रहा है. ही स्टार्ट्स टॉकिंग इरेलीवेंटली. बेकार की बेसिर पैर की बातें कर रहा है वो. अब एकदम से बात होती है कि अब उसको टॉपिक पे आना है तो ही स्टार्ट्स विद द फैक्ट कि ही सेज दैट लुमोव्स एंड चुबुकोव्स, जो लुमोव्स का खानदान है चुबुकोव्स का खानदान है, दे हैव ऑलवेज बीन गुड फ्रेंड्स. He starts his discussion like that and then he says कि also with being good friends we have been close neighbors. हम बहुत ही close रहे हैं relation wise. आपस में हमने बहुत बना के रखी है. वो ये बात मेंशन करते हैं कि इवन उनका जो ऑक्सीमीडोज लैंड है, एक लैंड का नाम रखा हुआ है उन्होंने. जैसे शाहरुख खान ने अपने घर का नाम मन्नत रखा हुआ है, सिमिलरली पुराने टाइम पे लोग अपने लैंड का भी नाम रखा करते थे, अपने प्लॉट्स का भी नाम रखा करते थे. तो सिमिलरली लुमोव के प्लॉट का नाम है ऑक्सन मीडोज. तो वो कहता है दैट हिज ऑक्सन मीडोज टच द बर्कवुड्स ऑफ द चुबुकॉव्स. चुबुकॉव्स के लैंड का नाम यहाँ पे बर्कवुड बताया गया है. तो वो कह रहा है कि ऑक्सन मीडोज और बर्कवुड की जो बाउंड्रीज हैं आपस में टच करती हैं. मतलब इन शॉर्ट वो साथ साथ हैं. ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू लुमोव्स एंड बर्कवुड बिलोंग्स टू चुबुकॉव्स. It is a piece of land. Let's just mention this once. ये दोनों, they both are piece of lands. Sorry for my handwriting. They are piece of lands. Both these. So एन एंग्री आर्ग्यूमेंट स्टार्ट्स बिटवीन द टू. दोनों के बीच में एक एंग्री आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होती है बिकॉज नटालिया अपनी कॉन्वर्सेशन को इसके ये बात सुनने के बाद बोलती है कि जो मीडोज वाला लैंड है वो तुम्हारा नहीं है, वो तो चुबुकॉव्स को बिलोंग करता है. सो एन एंग्री आर्ग्यूमेंट स्टार्ट्स बिटवीन द टू. नटालिया सेज दैट मीडोज बिलोंग टू द चुबुकॉव्स, कि वो लैंड तो हम चुबुकॉव्स का है. बट लुमोव उस समय क्या बोलता है? Lumov says that he has the documents to prove his right of ownership. Lumov उस बात को डिसमिस करता है, उसकी बात को नकारते हुए ही सेज कि मेरे पास उस प्रॉपर्टी के, उस लैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रूव करने के लिए कि उस लैंड का ओनर मैं हूँ. Natalia refuses to accept any explanation
इन द हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, अब यहाँ पे क्या होता है, नटालिया जो है, हमने अभी पढ़ा कि तीनों कैरेक्टर्स जो हैं हमारे हमारे जो तीनों कैरेक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाले, झगड़ालू किस्म के हैं, दे आर वेरी क्वारलसम। तो नटालिया जो है, शी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एनी एक्सप्लेनेशन, वो कोई एक्सप्लेनेशन सुनने को तैयार नहीं है। इन द हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट लुमोव फॉरगेट्स ऑल अबाउट मेकिंग हिज प्रपोजल फॉर मैरिज। जैसा कि हर इंसान के साथ होता है, वाइल फाइटिंग ही एक्चुअली फॉरगेट्स कि वो ओरिजिनली वहाँ नटालिया को प्रपोज करने आया था। बोथ ऑफ देम स्टार्ट अब्यूजिंग ईच अदर्स फैमिली, मतलब बात इतनी बढ़ जाती है कि वो आपस में बुरी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हेयरिंग देयर शाउट्स, चुबुकॉव्स कम्स देयर, उनकी आवाज़ें सुन के, उनकी चिल्लम चिल्ली की आवाज़ें सुन के जो चुबुकॉफ इतना खुश हो रहा होता है कि फाइनली उसकी बेटी को कोई प्रपोज करेगा, वो अंदर आता है। जब उसे पता चलता है कि क्वारल उस बारे में हो रही है लैंड को लेके, ही इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग देम, उनको रोकने की जगह ही टू जॉइन्स द क्वारल, वो खुद उस क्वारल को ज्वाइन कर लेता है। लुमोव बिकम्स टेरिबली एक्साइटेड, ही लीव्स द प्लेस इन अ हाफ, वो इतनी, जैसे कहते हैं ना, ताव में आ जाता है अपनी एक्साइटमेंट में लड़ते झगड़ते, कि वो एकदम से इन अ हफ वहां से मुंह फुला के, बोलता बोलता जैसे एग्जिट कर देते हैं इंसान, वैसे ही वो बाहर चला जाता है। अब जैसी बात वो निकलता है बाहर, तो नटालिया इज वेरी एंग्री एट द मोमेंट, शी आस्क्स कि ये आया ही क्यों था यहाँ पे। सो एट दैट मोमेंट चुबुकॉफ टेल्स हर कि नटालिया, ही एक्चुअली केम टू प्रपोज टू यू फॉर मैरिज। When Natalia gets to know that she was about to get proposed, she starts crying. वो रोने लगती है. She thinks that now she has lost all her chances of getting married. मतलब imagine at the age of 25 she is thinking कि उसकी लाइफ खत्म हो गई है, because अब जो उसे प्रपोज करने भी आया था वो भी उसे प्रपोज नहीं कर रहा है, वहाँ से उसे छोड़ के चला गया है। उसने अपनी शादी के सारे चांसेस खत्म कर दिए, अब उसकी शादी नहीं हो पाएगी। शी कंपेल्स हर फादर टू ब्रिंग लोमोव बैक, अब वो अपने फादर से मिन्नतें कर रही है, उन्हें मना रही है कि प्लीज़ आप लोमोव को वापस मना के लाइए। फाइनली उसके फादर जाके लोमोव को मनाते हैं, लोमोव कम्स बैक, बट देन अ फ्रेश क्वारल स्टार्ट्स बिटवीन देम। अब हालांकि सारी बात ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब उनके बीच एक फ्रेश क्वारल स्टार्ट हो जाती है। अब इस बार वो क्वारल, एज वी ऑल गेस्टेड राइट, उनके पेट डॉग्स को लेकर होती है। नटालिया के पेट डॉग का नाम है स्क्वीज़र और लोमोव के पेट डॉग का नाम है गेस। लेट्स अंडरलाइन देम। Natalia's pet dog's name is Squeezer. Lomov's pet dog name is Guess. I know it sounds like some very famous brands or a clothing line कि किसी कपड़ों की दुकान या फिर बड़ी ब्रांड का नाम है, but these are the names of their pet dogs. Natalia says that her pet dog Squeezer is 100 times better than Lomov's Guess. अब यहाँ पर वो एक कंपैरिजन शुरू कर देती है कि हाँ ठीक है, लेकिन मेरा डॉग जो है आपके डॉग से 100 टाइम्स बेटर है। Lomov says that her squeezer is 100 times worse. Lomov इस बात का रिप्लाई ऐसे करता है कि वो 100 टाइम्स अच्छा नहीं है, वो 100 टाइम्स बुरा है, ही इज वर्स। दोनों के कंपैरिजन चलते हैं, फिर से आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। वंस अगेन दे स्टार्ट अब्यूजिंग ईच अदर, फिर से बुरी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। लोमोव बिकम्स एक्साइटेड, सो एक्साइटेड, बोलते बोलते वो इतना ज़्यादा ताव में आ जाता है कि ऑल ऑफ अ सडन वो फेंट हो जाता है। बोलते बोलते उसको चक्कर आ जाते हैं, ही फेंट्स। नाउ नटालिया थिंक्स दैट लोमोव इज डेड, उसको बेहोश देख नटालिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ रोना वाली है और उसको ऐसा लग रहा है कि अब लोमोव मर गया है। उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि मुझे उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इंस्टेड शी इज़ थिंकिंग कि हाय अब मुझसे शादी कौन करेगा, जो मुझे प्रपोज करने आया था वो भी मर चुका है। सो चुबुकॉव जैसे ही देखता है सिचुएशन को, ही कम्स आउट, ही ट्राइज टू रिवाइव लोमोव, उसको जगाने की कोशिश करते हैं, जैसे चक्कर आने पर उसको ऐसे थप्पड़ थप्पड़ मार रहे हैं, उस पर पानी छिड़क रहे हैं। ही गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे थोड़ा पानी देता है पीने के लिए। लोमोव फाइनली हल्का फुल्का मूव करता है, ही मूव्स अ लिटिल। एट वंस चुबुकॉव जैसी देखता है कि अब लोमोव को थोड़ा होश आ गया है, ही पुट्स नटालियाज हैंड इनटू लोमोव्स हैंड, वो नटालिया का हाथ लोमोव के हाथ पे रखता है, एंड ही सेज हरी अप एंड गेट मैरिड, शी इज़ विलिंग। कहता है भैया
तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो, लड़की हमारी मानी हुई है, वो तुमसे शादी करने को तैयार है, तुम शादी कर लो। वो मान गई है, उसने आई डू बोल देगी वो। And thus Natalia accepts the proposal for marriage even though it is never made. पूरे प्ले में बात चलती रहती है प्रपोजल की, जो होने वाला है लेकिन एंड में होता नहीं है। एंड में चुबुकॉव ही हार मान के कहता है कि यार ये इतनी झगड़ालू लड़की है, इसको और कोई लड़का नहीं मिलेगा, अच्छा है सामने से एक रिश्ता आ रहा है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। और उस रिश्ते को एक्सेप्ट करते ही स्टार्ट्स टू से कि भैया तुम इससे शादी कर लो, ये तुमसे शादी करने को तैयार है, बात ख़त्म करो, हमें कुछ और प्रपोजल नहीं चाहिए। दस नटालिया एक्सेप्ट्स द प्रपोजल फॉर मैरिज। उसका प्रपोजल फॉर मैरिज एक्सेप्ट हो चुका है, इवन दो वो कभी हुआ ही नहीं। जो लुमोव अपने दिमाग में सोच के आता है कि रोमांटिकली एक घुटने पे बैठ के नटालिया को प्रपोज करूंगा, वो कभी होता ही नहीं है। एंड ऐसे ही इस प्ले का एंड हो जाता है। So with this, we end this chapter's main points. These are the main points of this chapter. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel, Simrish Tutorials.